Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your biology teacher from Hina Secondary School. By the grace of Allah, I hope all of you will be fine. Dear students, we have started our second chapter, Structural Organization of Life of Section 2, Organization of Life, and we have studied starting 4 topic, and I gave you from assignment of question number 1, 2, 3, 4 and 5. Let's continue our study from topic number 5. The topic number 5 of the chapter is cell division, cell की तकसीम. Cell reproduce and increase in number of division, number by division. वो प्रोसेस जिसके ज़रिए तमाम सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, उन्हें सेल डिवीजन कहा जाता है. As we learned that all living things are made up of cell, a main characteristic of living thing is grow. For this, cell divide and form new cell. The cell theory states that a new cells are formed by the division of pre-existing cell. Definition: the process by which cell increase in number is called cell division. वो process जिसके ज़रिए तमाम सेल अपनी तादाद को बढ़ाते हैं उसे cell division कहा जाता है. After going to a certain maximum size, a cell may undergo process called cell division. जब लिविंग थिंग के सेल अपने मैक्सिमम साइज पर पहुंच जाते हैं तो फिर वो सेल प्रोसेस के ज़रिए अपने आप को डिवाइड करते हैं. माइटोसिस सेल डिवीजन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप. Number 1, karyokinesis. During cell division, nucleus divide first. The division of nucleus is called karyokinesis. Number 2, cytokinesis. Division of nucleus is followed by the division of cytoplasm. As a result, 2 daughter cells arise from a single division of cell. Cytoplasm division is called cytokinesis. There are 2 main types of cell division found in living organism. Number 1, mitosis. Number 2, meiosis. Number 1, mitosis. In this type of cell division, a parent cell divides into 2 daughter cells in a way that number of chromosomes in the daughter cell remain the same as in the parent cell. Mitosis cell division की वो टाइप होती है जिसमें parent cell डिवाइड होने के बाद 2 daughter cell इस तरह से फॉर्म करता है कि नए बनने वाले सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सिमिलर रहते हैं या बराबर रहते हैं. द सेल विच अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड पेरेंट सेल. वो सेल जिसके अंदर डिवीजन का अमल होता है उसे पेरेंट सेल कहा जाता है. एंड द न्यू सेल्स विच अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल आर कॉल्ड डॉटर सेल. जबकि पेरेंट सेल के डिवीजन से जो नए सेल्स बनते हैं उन्हें डॉटर सेल्स कहा जाता है. माइटोसिस इज अ इक्वेशनल टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम्स नंबर डज नॉट चेंज. सेल डिवीजन की वो टाइप जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते उसे माइटोसिस कहते हैं. एक तरह से ये इक्वेशनल टाइप है सेल डिवीजन की. ऑल द माइटोसिस आर कंटिन्यूस प्रोसेस. इट्स कैरियोकाइनेसिस कैन बी डिवाइड फॉर कन्वीनियंस इन स्टडी इन 4 फेजेस. माइटोसिस एक मुसलसल तकसीम का अमल है, लेकिन इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियस की डिवीजन को अपने आसानी के लिए 4 फेज में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज, नंबर 4 टीलोफेज. Number 1 stage of nuclear mitosis in karyokinesis, prophase. Prophase is the early or first phase of the mitosis. Prophase nucleus division की first phase होती है. During early prophase, chromatin network of all nuclei condenses and become visible as chromosome. इस तकसीम के दौरान तमाम न्यूक्लियर मटेरियल जो है कंडेंस होता है और इसमें क्रोमोसोम विजिबल या फिर नजर आने लगते हैं. इस क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिड बिकॉज ऑफ एग्रीगेशन. हर क्रोमोसोम डिवाइड होने के बाद 2 क्रोमेटिड के अंदर चेंज होता है और ये क्रोमेटिड सेंट्रोमेर के जरिए आपस में जुड़े हुए होते हैं. इन दिस फेज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली डिसअपियर. इसके बाद इसी फेज के दौरान न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना शुरू जाती है. Centrosome in animal cell divide and move toward the opposite pole of the cell and form the spindle fiber. Animal cell के अंदर सेंट्रोसोम डिवाइड होने के बाद 2 सेंट्रियोल में चेंज आते हैं और सेल के अपोजिट पोल के अंदर पहुंच जाते हैं, जबकि ये सेंट्रियोल प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं. मेटाफेज इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन की सेकेंड स्टेज का नाम मेटाफेज है. डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट इटसेल्फ एट इक्वेटर. इस फेज के दौरान तमाम डुप्लीकेट क्रोमोसोम अपने आप को सेल के सेंटर में अरेंज कर लेते हैं. ईच क्रोमोसोम इज अटैच टू सेपरेट स्पिंडल फाइबर बाय इट्स सेंट्रोमियर. और हर क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के जरिए अपने आप को स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच कर लेता है. नंबर 3 स्टेज ऑफ mitosis karyokinesis is anaphase. Centromere of the duplicated
chromosomes divide as a result chromatid of each chromosome separate from each other। इस फेज के दौरान हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमीटर डिवाइड होने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट या फिर अलग हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर श्रिंक एंड बिकम शॉर्ट। स्पिंडल फाइबर जिसके पर क्रोमोसोम लगे होते हैं वो श्रिंक होना शुरू जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स बिगैन टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। इसके बाद हर क्रोमोसोम की क्रोमेटिड अलग अलग पोल की जानिब मूव करना शुरू कर देते हैं। वन सेट ऑफ क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड द वन पोल व्हाइल द अदर सेट टुवर्ड्स द अदर पोल। क्रोमेटिड्स का एक सेट सेल के एक पोल की जानिब जबकि दूसरा सेट सेल के दूसरे पोल की जानिब मूव करता है। नंबर 4 स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज टेलोफेज। टेलोफेज इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। टेलोफेज मर्डर्स के अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन का लास्ट स्टेज होता है। क्रोमेटिड रीच एट द पोल। क्रोमेटिड पोल के नज़दीक पहुंच जाते हैं। नाउ दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम। अब इनको क्रोमोसोम कहता है। देयर मूवमेंट सीज, और यहाँ पर आने के बाद इनकी मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता रुक जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिफॉर्म। न्यूक्लियोलाई रीअपियर। इस दौरान की सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से डेवलप होना शुरू हो जाती है और न्यूक्लियोलाई दोबारा से बन जाता है। 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर विद डिप्लॉयड नंबर आर फॉर्म। इसके बाद एक सेल के अंदर डिप्लॉयड नंबर के साथ 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं। Soon the cytoplasm of the cell also divide and 2 daughter cells are arise। न्यूक्लियस के जन्म के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होता है और 2 सेल्स बन जाते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ ईच डॉटर सेल कंटेन द सेम क्रोमोसोम्स नंबर एज इन द पेरेंट सेल। हर नए बनने वाले सेल के अंदर नंबर क्रोम वही होते हैं जो उनके पेरेंट सेल में होते हैं। इन दिस वे द डॉटर सेल आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट सेल। इस तरीके से जो नए सेल्स बनते हैं वो अपने पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की अहमियत। माइटोसिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लाइफ ऑर्गेनिज्म। माइटोसिस न सिर्फ एक सेल डिवीजन है बल्कि लिविंग थिंग की लाइफ के लिए एक अहम किरदार भी अदा करता है। माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। माइटोसिस जो कि सेल डिवीजन के प्रोसेस है ये लिविंग थिंग के अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ के अमल को का जिम्मेदार है। या लिविंग थिंग के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट का अमल इसी सेल डिवीजन के जरिए होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमैटिक सेल्स सच एज ब्लड सेल डिपेंड ऑन द माइटोसिस। बॉडी बनने वाले नए सोमैटिक्स है जैसे कि ब्लड सेल बनने के जिम्मेदार भी यही सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन के जरिए बॉडी के अंदर नए ब्लड सेल्स बनते रहते हैं। द हीलिंग ऑफ वुंड्स, रिपेयर ऑफ वेयर एंड टेयर इन ऑर्गेनिज्म आल्सो डिपेंड अपॉन द माइटोसिस। लिविंग थिंग के अंदर जख्म का भर जाना और नए टिश्यूज़ का बनने का अमल भी सेल डिवीजन की इसी टाइप के होने से होता है। ऑल काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिपेंड ऑन माइटोसिस। तमाम लिविंग थिंग के अंदर पाए तमाम किस्म की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या प्लांट के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अमल भी का काम भी यही डिवीजन अंजाम देती है। माइटोसिस डज नॉट कॉज वेरिएशन। इस सेल के जरिए नई वेरिएशन या नई वैरायटी नहीं बनती है बिकॉज नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस, क्योंकि इस दौरान कोई जेनेटिक मटेरियल तक नहीं चेंज नहीं होता है। ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट। जो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस के जरिए डेवलप होते हैं वो अपने पेरेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती हैं क्योंकि इसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होता है। Second type of cell division is meiosis. Meiosis or reduction cell division is a special type of cell division in which a parent cell finally is divided into 4 daughter cells in a way that the number of chromosomes in each daughter cell reduced to half of पेरेंट सेल। मियोसिस जो है, मियोसिस का सेकंड नेम रिडक्शन सेल डिवीजन भी है। ये ख़ास किस्म की सेल डिवीजन होती है जिसमें एक पेरेंट सेल फाइनली इस तरीके से 4 नए सेल में डिवाइड होता है कि नए बनने वाले सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने पेरेंट के मुकाबले में हाफ रह आते हैं। दस इट इज़ द रिडक्शन ऑफ द डिप्लॉयड 2 एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू द हैप्लॉयड एंड नंबर क्रोमोसोम। इस किस्म की डिवीजन के अंदर नंबर क्रोमोसोम 2 एंड डिप्लॉयड से हाफ या फिर हाफ रह आते हैं। डेफिनेशन मियोसिस इज़ द रिडक्शनल सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। मियोसिस किस्म की रिडक्शनल सेल डिवीजन होती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम होके आधे रह जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन। मियोसिस की प्रोसेस को हम 2 तरीके की सेल डिवीजन, 2 किस्म की डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ कॉल्ड मियोसिस 1। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और रिडक्शन फेज। ये मियोसिस की वो स्टेज होती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होकर आधे रह जाते हैं। सेकेंड स्टेज इज़ मियोसिस 2। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेकेंड मियोटिक डिवीजन और मियोटिक माइनॉरिटी फेज, जिसमें आधे होने वाले नंबर जो होते हैं मज़ीद रिडक्शन नहीं होते बल्कि जो नंबर रिड्यूस होते हैं वो मेंटेन रहते हैं या फिर बरकरार रहते हैं।
Number one, meiosis one. It is also called first meiotic division or reduction phase. First meiotic division or reduction diploid number 2n of the chromosome to the haploid number. ये फेज होती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n से रिड्यूस होकर हाफ इनके हैप्लॉइड जाते हैं. दिस डिवीजन कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस. डिवीजन को भी हम 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं. प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1. प्रोफेज 1, those chromosomes in the cell which are similar to each other इन शेप एंड साइज आर कोल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम. प्रोफेज 1 के अंदर तमाम क्रोमोसोम जो सिमिलर होते हैं शेप के लिहाज से या स्ट्रक्चर के लिहाज से उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है. दिस होमोलोगस क्रोम अकर्स इन पेयर. ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं और माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क यहीं से स्टार्ट होता है. माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम डेवलप नहीं होते, जबकि मियोसिस के प्रोसेस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो अपना पेयर फॉर्म कर लेते हैं. इनके बनने से जो पेयर बनता है उसे होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कहा जाता है. इन ईच होमोलोगस पेयर देयर आर 4 क्रोमेटिड. हर होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमेटिड होते हैं जो कि ये पेयर फॉर्म कर लेते हैं. ज्वाइन टू एक्सचेंज देयर पार्ट्स एट सर्टेन प्लेस. ये होमोलोगस क्रोमोसोम कुछ प्लेस के ऊपर अपने अपने पार्ट को एक्सचेंज कर लेते हैं. दी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. और इन होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज करने का अमल का नाम क्रॉसिंग ओवर है. ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस एंड न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स अकर. और इसी प्रोसेस में जीन्स की नई कम्बिनेशन बन जाती है जो लिविंग थिंग के अंदर वेरिएशन या तब्दीली का बायस बनती है. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली डिसअपियर. एट द सेम टाइम स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म. इन मेटाफेज 1, during this phase homologous chromosomes arrange themselves on the equator of the spindle. मेटाफेज 1 के दौरान तमाम होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप को सेल के सेंटर में इक्वेटर पर अरेंज कर लेते हैं. अटैच टू द सेपरेट स्पिंडल फाइबर्स ऑफ द स्पिंडल. और अब हर एक जो होता है वो अलग अलग स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाता है. इन एनाफेज 1 नो सेंट्रोमियर डिवाइड एंड द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगन टू सेपरेट एंड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल. एनाफेज 1 के अंदर सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड इंडिविजुअल से अलग होने के बाद अलग अलग पोल्स के ऊपर चले जाते हैं. इन टेलोफेज 1 द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर रिफॉर्म अराउंड द ईस्ट साइड ऑफ क्रोमोसोम. जो पोल्स के सराउंडिंग के पोल्स के ऊपर जो क्रोमोसोम के पेयर बन जाते हैं उनकी सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आस्ते आस्ते डेवलप होना शुरू हो जाती है. रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, जिसके नतीजे में हर सेल के अंदर 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन जाते हैं. ऑन कम्प्लीशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड. जब न्यूक्लियस की डिवीजन होता है इसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है. एंड 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म. और 2 नए डॉटर सेल्स बन जाते हैं. ईच डॉटर सेल हैव हाफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल कंपेयर विद द सेल इन प्रोफेज. और हर नए बनने वाले सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस के हाफ जाते हैं अपने पेरेंट सेल के मुकाबले में. Thus, in the first meiotic division, reduction of diploid chromosomes take place to the haploid set. Meiosis 2, it is also called second meiotic division or equitational division. There is no further replication of chromosomes take place. It is also consists of different phases. During prophase 2, spindle fiber are formed at the and the nuclear membrane disappear. Prophase 2 में nuclear spindle fiber दोबारा से बन जाते हैं और nuclear membrane दोबारा से disappear आती है. In metaphase 2, chromosomes arrange themselves at the equator. Metaphase 2 में तमाम chromosomes अपने आप को equator पे या सेल के सेंटर में अरेंज कर लेते हैं. दे आर क्रोमेटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन एनाफेज 2. एनाफेज 2 में हर क्रोमोसोम से क्रोमेटिड सेपरेट या फिर अलग हो जाते हैं. एंड माइग्रेट टू द अपोजिट पोल. और अलग अलग पोल की जानिब माइग्रेट करना शुरू जाते हैं. इन टेलोफेज 2 द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर अराउंड द ईच साइड्स ऑफ क्रोमोसोम. एंड टेलोफेज 2 के अंदर हर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सराउंडिंग में आस्ते आस्ते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होना शुरू जाती है. एंड द साइटोप्लाज्म डिवाइड फॉर्मिंग 2 डॉटर सेल्स. और हर साइटोप्लाज्म डिवाइड के बाद जो है वो हर पोल के बाद मजीद 2 सेल्स फॉर्म कर लेता है. सो एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस इन टोटल. ईच पोजीशन का हैप्लॉइड न्यूक्लियस से मियोसिस के एंड के अंदर 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं और हर एक के अंदर जो है वो हाफ न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है. दस मियोसिस प्रोड्यूस सेल्स गैमेट्स विद द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इस तरह से मियोसिस बनने वाले सेल के अंदर जो है उन्हें गैमेट्स कहा जाता है जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होकर हाफ हो जाते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. Meiosis play a very important role in keeping the chromosomes
नंबर कांस्टेंट इन स्पीशीज़ फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो कि यो प्रोसेस है जिसके ज़रिए, क्योंकि प्रोसेस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम के हाफ आते हैं, लिहाजा ये प्रोसेस है जिसके ज़रिए जनरेशन टू जनरेशन जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है कांस्टेंट या फिर मुस्तकिल रखा जाता है। मियोसिस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट सेल इन एनिमल एंड स्पोर इन प्लांट। ये प्रोसेस एनिमल के अंदर गैमेट्स बनने में, जबकि प्लांट के अंदर स्पोर बनने में मदद देता है। मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन इन स्पीशीज, दस वेरिएशन प्रोवाइड द बेसिक बेस ऑफ एवोल्यूशन। मियोसिस के नतीजे में चूँकि जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है और यही चेंज होता है वो लिविंग थिंग के अंदर एवोल्यूशन का बायस बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंड ऑन मियोसिस। तमाम लिविंग थिंग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल मियोसिस पर ही डिपेंड करता है। मियोसिस कॉज वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग, चूँकि इस प्रोसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है, लिहाजा ये चेंज होता है ऑफस्प्रिंग के अंदर भी तब्दीली का बायस बनता है। Organisms sexually reproduced by meiosis are not exact copy to each other and the parent, चूँकि इस प्रोसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है, लिहाज प्रोसेस के ज़रिए जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं वो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। टॉपिक नंबर 5 हैज़ बीन कंप्लीट एंड द होमवर्क ऑफ टॉपिक नंबर 5 इज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 and 9. Do homework in full scale paper. टॉपिक नंबर 6, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल टू फॉर्म टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। सेल का ऑर्गेनाइज होने के बाद टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनने का अमल। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, सेल बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है। लाइफ का सवाल पता होता है कि एक सिंगल सेल किस तरह से एक ऑर्गेन के तौर पर बिहेव करता है। बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, ये सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं। द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके अंदर से ये एक सेल जो है वो तमाम काम जो होता है अपने सेल ऑर्गेनिज्म के ज़रिए अंजाम देता है। इसका मतलब क्या है कि एक सेल के अंदर जो है वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने की सलाहियत मौजूद है। सच ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द यूनिसेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्किल होते हैं और तमाम काम सेल के ज़रिए अंजाम देते हैं, वो ऑर्गेनिज्म के सेलुलर लेवल को इंडिकेट करते हैं। कुछ केसेस के अंदर सेल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होने के बाद या तो फिर लूजली अरेंज होते हैं या फिर वो टिश्यूज फॉर्म करते हैं। इस किस्म के ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। टिश्यूज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। अगर मल्टी सेलुलर में जो है टिश्यूज़, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। जब यही सेल ऑर्गेनाइज जाते हैं तो वो टिश्यूज फॉर्म करते हैं। व्हाट आर टिश्यूज? अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज। ऐसे सेल्स का ग्रुप जो फंक्शन या काम के शक्ल के लिहाज से एक जैसे होते हैं वो टिश्यूज फॉर्म करते हैं। देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ टिश्यूज इन प्लांट। बोथ प्लांट एनिमल consist of tissues. Main type of plant tissues are number 1 मेरिस्टेमेटिक tissues, number 2 permanent tissues. ये सेल प्लांट की टिश्यूज डिवीजन डिपेंड करता है सेल डिवीजन के ऊपर। जो प्लांट टिश्यूज डिवीजन की एबिलिटी रखते हैं उन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहता है, जबकि वो प्लांट टिश्यूज जिनमें मज़ीद नए समय की सलाहियत नहीं होती उन्हें परमानेंट टिश्यूज़ कहा जाता है। परमानेंट टिश्यूज़ को मज़ीद यह टाइप में डिवाइड करते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ की डिवीजन डिपेंड करती है स्ट्रक्चर के ऊपर भी और फंक्शन के स्ट्रक्चर के लिहाज से प्लांट परमानेंट टिश्यूज़ को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 सिंपल टिश्यूज़ विच आर मेड ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ टिश्यूज़। नंबर टाइप पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नंबर 2 परमानेंट टिश्यूज़ आर कम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यूज़ इन विच जाइलम एंड फ्लोएम इंक्लूडेड। सेकेंड डिवीजन ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। There are 4 main type of permanent tissues basis or function. Number 1 epidermal tissues, number 2 ground tissue, example parenchyma, number 3 supporting tissues, example sclerenchyma and collenchyma, and number 4 conducting or vascular tissue, example xylem and phloem. Let's study detail of these tissues. Number 1 meristematic tissues. The tissues contain cell which have ability to divide, so they increase in number एंड हैव टू ग्रो ऑर्गेनिज्म। ये टिश्यूज़ जिन सेल से मिलकर बनते हैं उनके अंदर डिजाइन करने की एबिलिटी होती है, लिहाजा ये नंबर में इंक्रीज होते रहते हैं और लिविंग थिंग को ग्रो करने में मदद देते हैं। These cells are thin wall and nucleus present in the center. ये सेल इनकी वॉल बहुत ज़्यादा पतली होती है और अमूमन न्यूक्लियस इनके सेंटर में होता है। These tissues are mainly present in root tips and shoot apex.
आमतौर पर प्लांट के अंदर ये टिश्यूज़ रूट और शूट की टिप के ऊपर मौजूद होते हैं और जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड होने के बाद सेल प्लांट को जो है वो ग्रो होने में या बढ़ने में मदद देते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज़ आर परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ आर फॉर्म फ्रॉम द मैथमेटिक्स सेल डिवीजन। वो टिश्यूज़ जो कि मैथमेटिक्स की डिवीजन के हाथ बन जाते हैं और उनमें मज़ीद डिवीजन की सलाहियत नहीं होती, उन्हें परमानेंट टिश्यूज़ कहा जाता है। देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। नंबर वन, सिंपल टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स फॉर्मिंग होमोजेनस और यूनिफॉर्म मास। वो प्लांट टिश्यूज़ जो कि सिर्फ एक किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें सिंपल टिश्यूज़ कहा जाता है और जिनके अंदर एक से ज़्यादा किस्म के सेल होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहा जाता है। सिंपल टिश्यूज़ की मज़ीद फर्दर थ्री टाइप है। नंबर वन, पैरेन्काइमा, नंबर टू कॉलेनकाइमा और नंबर थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं वो लिविंग सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। दीज सेल हैव इंटरसेलुलर स्पेस, चूँकि ये फासले पे होते हैं लिहाजा के दरमियान में स्पेस या खाली जगह मौजूद होती है। दीज सेल आर प्रेजेंट इन ऑल सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये तमाम सेल प्लांट के तमाम सॉफ्ट पार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। ये फूड को स्टोर करने का काम अंजाम देते हैं। नंबर सेकेंड type of simple plant tissues is collenchyma. It consists of somewhat elongated cells. ये टिश्यूज़ होते हैं वो elongated cells के ऊपर मुश्तमिल होते हैं with the corner filled with the cellulose and pectin और जिनके कॉर्नर जो होते हैं वो cellulose या फिर pectin से फिल होते हैं। collenchyma cells अगर under the epidermis of herbaceous dicotyledonous plant, तमाम जो herbaceous soft plant होते हैं उनकी epidermis के नीचे जितने भी सेल होते हैं वो तमाम collenchyma कहलाते हैं। नंबर थर्ड, बेसिक टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज इन प्लांट आर sclerenchyma. दिस कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग नैरो थिक वॉल एंड लिग्निफाइड सेल। ये टिश्यूज बहुत ज़्यादा लंबे पतले और थिक वॉल लिग्निफाइड सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। दे आर डेड सेल बिकम हार्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये डेड सेल होते हैं चूँकि इनके अंदर लिग्निन बहुत ज़्यादा में जमा होता है लिहाजा ये अब नीचे के लिहाज से बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। दे आर फाउंड इन जाइलम एंड हार्ड फूड कोड। आमतौर पर ये जाइलम में और फ्रूट के जो पार्ट बहुत हार्ड होते हैं वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। कम्प्लेक्स टिश्यूज और कंपाउंड टिश्यूज, दे आर टू टाइप ऑफ कम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज ऑन द बेस ऑफ फंक्शन के लिहाज से परमानेंट टिश्यूज़ को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यूज़ फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ। अगर हम रूट स्टेम और लीफ का इंटर्न स्ट्रक्चर या टीएस देखें तो जो सेल्स की लेयर सबसे बाहर से सराउंड करती हैं उन्हें एपिडर्मल टिश्यूज़ कहा जाता है। दे आर रेक्टेंगुलर इन शेप एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विद नो स्पेसिस। ये रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं और बहुत करीब करीब होते हैं, दरमियान में कोई स्पेस मौजूद नहीं होती है। The main function of epidermal tissues to protect the inner part of the plant। चूँकि ये टिश्यू सबसे बाहर होते हैं लिहाजा ये प्लांट के पार्ट इंटरनल पार्ट की हिफाजत करते हैं। सेकेंड मेन टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज ग्राउंड टिश्यूज। दिस टिश्यूज आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वैस्कुलर टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यूज और वैस्कुलर टिश्यूज के बाद अलावा जितने भी टिश्यूज प्लांट के अंदर होते हैं उन्हें ग्राउंड टिश्यूज कहा जाता है। ग्राउंड टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल पैनकाइमेटिक सेल विद लार्ज वैक्यूल। इनकी सेल्स की वॉल बहुत ज़्यादा थिन होती है और इनके अंदर लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। द मेन फंक्शन ऑफ ग्राउंड टिश्यूज़ इज़ टू स्टोर फूड बट आल्सो प्रिपेयर सम फूड। इनका मेन काम अपने अंदर फूड को स्टोर करना है लेकिन बार ये फूड प्रिपेयर करने का काम भी सरअंजाम देते हैं। नंबर थर्ड, बेसिक टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज सपोर्टिंग टिश्यूज़। व्हेन द सेल अचीव अ मैक्सिमम साइज देयर सेल वॉल बिकम थिक ड्यू टू द डिपोजिशन और स्पेशल मटेरियल। जब सेल जो होते हैं अपने मैक्सिमम साइज पर पहुंच जाते हैं तो ये थिक हो जाते हैं और खास किसी अपने अंदर जो है खास किस्म के मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं। दिस ऑल बिकम डेड एंड फॉर्म सपोर्टिंग टिश्यू। जब ये सेल डेड हो जाते हैं तो फिर प्लांट के लिए सपोर्टिंग टिश्यूज़ के सारे काम अंजाम देते हैं। एग्जाम्पल आर स्क्लेरेन्काइमा एंड collenchyma. The main function of supporting tissues is to provide rigidity supporting tissue। चूँकि ये सख्त होते हैं लिहाजा अपनी सख्ती कैसे प्लांट को सपोर्टिंग या फिर सहारा फ्राहम करते हैं। नंबर 4, मेन टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज आर कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यूज। दिस टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एलोंगेटेड सेल विद थिक और थिन वॉल। ये टिश्यूज जिन सेल पर मुझसे होते हैं उन ये लंबे होते हैं, इनकी वॉल थिक भी होती है और
थिन भी होती है। द टू मेन बेसिक टाइप ऑफ कंडेंट टिश्यूज़ आर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कंसिस्ट ऑफ इलॉन्गेटेड सेल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा वेसल एंड फाइबर। जाइलम के टिश्यूज़ लंबे लंबे सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं जो स्क्लेरेन्काइमाटिस वेसल में मुश्तमिल होते हैं और ये फाइबर्स या पौधा लंबे होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज़ टू कंडक्ट वाटर फ्रॉम सॉइल टू द लीफ एंड आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। जाइलम का मेन फंक्शन प्लांट के अंदर वाटर कंडक्ट करना है सॉइल से प्लांट के तमाम अपर पार्ट में, इसके साथ साथ चूँकि ये रिजिड होते हैं लिहाजा ये प्लांट को सपोर्ट या सहारा भी फराहम करते हैं। सेकेंड मेन टाइप ऑफ कंडेंटिक और वैस्कुलर टिश्यूज इज फ्लोएम। इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल लाइक सीव ट्यूब और ये फ्लोएम के सेल्स लिविंग सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं जिनके दरमियान में सीव्स या फिर नेट भी मौजूद होती है। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज़ टू कंडक्ट फूड फ्रॉम लीफ टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का मेन फंक्शन लीफ के जरिए तैयार होने वाली फूड को प्लांट के तमाम पार्ट में पहुँचाना है। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म वेस्कुलर बंडल इन द स्टेम वाइल दे रिमेन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन द रूट। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलने के बाद एक बॉडी फॉर्म करते हैं जिन्हें वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ये वेस्कुलर बंडल स्टेम में साझा होते हैं जबकि रूट में ये सेपरेट या फिर ये अलग हो जाते हैं। एनिमल टिश्यूज़ लाइक प्लांट एनिमल हैव टिश्यूज़ विच फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़ आर नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यूज़, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यूज़, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यूज़, नंबर 4 नर्वस टिश्यूज़। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यूज़। This tissues consist of single layer of cell. Cell of tissues are closely packed to each other. ये टिश्यूज़ जो हैं वो सेल्स के सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं जो कि एक साथ जो है वो क्लोजली या करीब करीब आपस में मिले होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ इज़ टू प्रोटेक्ट द ट्यूबुलर ऑर्गन बिकॉज दे लाइन द ट्यूबुलर ऑर्गन। These tissues also have in absorption, secretion and excretion. Number 2 main type of animal tissues are connective tissues. These tissues range from soft to very hard. इस किस्म के टिश्यूज़ के अंदर सॉफ्ट से लेकर हार्ड तक टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर सॉफ्ट से लेकर हार्ड किस्म के हर किस्म के टिश्यू शामिल है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल एंड फाइबर। ये टिश्यूज़ सेल और फाइबर्स पे मुश्तमिल होते हैं विद सेलुलर मटेरियल फिल्ड इन मैट्रिक्स फाउंड इन बिटवीन द सेल ऑफ टिश्यूज़। इन टिश्यूज़ के सेल के दरमियान में एक सेलुलर मैट्रिक्स या मटेरियल मौजूद होता है। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। नंबर 1 सॉफ्ट टिश्यूज़ एग्जाम्पल फैटी टिश्यूज़ एंड टेंडन। नंबर 2 हार्ड टिश्यूज़ एग्जाम्पल आर कार्टिलेज एंड बोन और नंबर 3 स्पेशल टिश्यूज़ एग्जाम्पल इज ब्लड। द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ इज टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन द बॉडी। चूँकि इस टिश्यूज़ में मौजूद ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है लिहाजा अपनी मूवमेंट के साथ साथ पूरी बॉडी के अंदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ बाइंड स्ट्रक्चर टुगेदर। ये टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के दूसरे ऑर्गन को आपस में बाइंड रखने में मदद देते हैं। इट provide support and production, fill spaces, store fat and form blood cell. Number 3 main type of animal tissues are muscular tissues which consist of elongated cells called muscle fiber. The main function of muscular tissues is to help in movement of body and body part. Number 4 animal tissues are nervous tissues. Nervous tissues consist of nerve cell or neuron. Each nerve cell is specialized cell. Nervous system consists of nerve cells. ये टिश्यूज़ जिस लंबे लंबे सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें नर्व सेल्स या फिर उन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। The main function of nerve cell or neuron is to conduct messages in the form of electrical current. ऑर्गन मीन आज़ा। हमारा आर्म एक ऑर्गन की एग्जाम्पल है कि मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़ से मिलकर बनता है। डेफिनेशन ऑर्गन इज़ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर मेकिंग अ फंक्शनल यूनिट। अदर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन आर आर्म, heart, kidney, liver. In plant, the example organ are stem, root, flower, and seed. Organ system: the organs work together as a unit to perform a particular function, make organ system. जब बहुत सारे ऑर्गन मिलने के बाद एक पर्टिकुलर सिस्टम बना लेते हैं और मिलने के बाद एक फंक्शन से अंजाम देते हैं तो ये सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। एग्जाम्पल ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी आर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, vascular system, excretory system, and the example of organ system in plant are root and shoot system. The various level of organization from simplest to the most complex are cells, tissues, organs, systems, and organism.
Topic number 6 has been completed. The homework of topic number 6 is question number 10, 11 and 12. Do homework in full-scape paper. Topic number 7, unicellular organism. Those animal and plant which are single cell are called unicellular organism. वो तमाम एनिमल्स या प्लांट जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. एग्जाम्पल, अमीबा इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. It is a unicellular aquatic organism found in stagnant water pool and pond. अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि ठहरे हुए पानी के अंदर पाया जाता है. It is microscopic. It does not possess permanent form and keep changing its shape. The nucleus and cytoplasm are surrounded by the protective membrane. Cytoplasm is differentiated into two main parts: outer ectoplasm and inner endoplasm. It is moved by the producing temporary finger-like projection called pseudopodia. Amoeba respire by exchanging gases with the surrounding water through its surface. Do question number 13 in topic number 7 about in full-scape paper. Multicellular organism. The majority of living organism consist of many cells are called multicellular. ज़्यादा जानदार की बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर ब्रासिका और फ्रॉग है. फर्स्टली हम स्टडी करेंगे ब्रासिका के बारे में. ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ मस्टर्ड सरसों. जो हम सरसों इस्तेमाल करते हैं उसका बोटेनिकल नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है, जिसके हम ऑयल को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. उसके पत्तों को साग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. इफ़ वी सी द मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रासिका, इट कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स. फंक्शन के लिहाज से इसके पार्ट्स को दो मेन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 वेजिटेटिव पार्ट विच डू नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव पार्ट आर रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव. नंबर 2 part of the plant is reproductive part which consists of cell organ which directly related to the sexual reproduction. The example of reproductive parts are flower. Let's study about the vegetative part. Number 1 main part of the plant is root. Vegetative part is root. Root is the part of the plant which grow under the soil and develop from the radicle of seed. जब हम सीड को ज़मीन में ग्रो करते हैं तो सीड के जिस पार्ट से रूट निकलती है उसे रेडिकल कहा जाता है और मेनली ये अंडरग्राउंड होती है. द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज़ टू फिक्स द प्लांट टू द सॉइल. ये चूँकि ज़मीन के अंदर होता है लिहाजा ये प्लांट को ज़मीन के अंदर फिक्स रखने में मदद देता है. द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट शेयर. प्लांट ज़मीन में मौजूद वाटर मिनरल को रूट पर मौजूद रूट है के ज़रिए ही एब्जॉर्ब करते हैं. अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करें तो आउटर मोस्ट पार्ट of the root is epidermis which protect the root. Next layer of the root is cortex which store the food. In the center the rounded region is called stele. The outermost layer of this region is the endodermis and the next layer of the cell is called pericycle. The central part of the root consists of xylem vessel and in the between the arm phloem is present. The rest of the stele is made up of parenchymatous cell. Second main vegetative part of the brassica plant is stem. Stem is a part of plant which develop from the plumule of the seed and grow away from the soil. Stem plant का वो part है जो seed के plumule से develop होता है और ये stem above the ground या ऊपर वाला हिस्सा होता है. The main function of stem is it as a bridge between the leaf and root. ये स्टेम जो कि दरम्यान में होता है लिहाजा ये रूट और लीफ के दरम्यान ब्रिज का काम सर अंजाम देता है. इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वाटर एंड सॉइल फ्रॉम रूट टू द लीफ. इट आल्सो ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीफ टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. द स्टेम एंड its branches also bear flower which are reproductive organ. If we see the internal structure of the stem, the outermost layer of the consists of single layer called epidermis. Next to the epidermis is cortex which is made up of parenchyma and concyma. Next to the cortex is a ring of vascular bundle which arrange in the
ring form. Xylem is located towards the inside and phloem towards the outside. Between the xylem and phloem there is a layer of cell which calls cambium. In the center of the stem occupied by a similar cell which called pith, and it is made of parenchymatous cell which store food material. Number third, basic vegetative part of the plant is leaf. Leaf grow on the stem on the end is branched from the node. स्टेम का वो हिस्सा जहाँ से लीफ अराइज होती है उसे नोड कहलाता है. लीव हैव डिफरेंट अपर एंड लोअर सरफेस कॉल्ड बाइफेशियल लीव. ऐसी लीफ जिसकी अपर और लोअर सरफेस मुख्तलिफ होती है उसे बाइफेशियल लीफ कहा जाता है. इफ़ वी लुक द लीफ ऑफ अ ब्रासिका, द स्टॉक लाइक पार्ट इज कॉल्ड पेट्यूल. लीफ का जो डंडी नुमा हिस्सा होता है उसे पेट्यूल कहलाता है. एंड द अपर ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट इज कॉल्ड लैमिना. देयर इज अ सोलन वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ विच इज कॉल्ड मिडरिव, एंड द ब्रांच अराइज फ्रॉम द मिडरिव like a net is called vein. Function of leaf. Leaves prepared food by photosynthesis for plant. लीफ प्लांट का वो पार्ट है जो प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए फूड तैयार करता है. इट आल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम. इट गिव ऑक्सीज वाटर थ्रू ट्रांसपरेशन. लीफ एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दस मिनिमाइज द एयर पोल्यूशन. रिप्रोडक्टिव पार्ट. The reproductive part of the plant. Part of plant which consists of sex organ and help in sexual reproduction is called flower. प्लांट का वो पार्ट जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद देता है उसे फ्लावर कहा जाता है. Brassica plant bear small yellow flower which is most beautiful and important part of the flower. The arrangement of flower on the stem is called inflorescence. If we see the parts of flower, the Brassica flower consists of main 4 parts. Number 1 calyx, number 2 corolla, number 3 androecium, number 4 gynoecium. The stalk of the flower is called pedicel and the tip of pedicel is called thalamus, on which all the floral leaves arranged in a particular manner. The first main part of the flower is calyx. Calyx is the outermost or lowermost hole of the flower which consists of 4 free green sepals. Calyx जो कि फ्लावर का सबसे बाहर का हिस्सा होता है, ये लोअर मोस्ट पार्ट भी आउटर मोस्ट पार्ट भी है और ये 4 ग्रीन कलर की सेपल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है. द मेन फंक्शन ऑफ कैलिक्स इज़ to protect the inner part of the flower. It also protects the flower from the sunlight and heavy rain. Second main part of the flower is corolla, which is the second hole of the flower. It consists of 4 free yellow petals. The main function of corolla is to attract the insect for the process of pollination. Number 4 main basic part of the flower is androecium. It is the third hole of the flower and it consists of 6 free stamens arranged in 2 circles. Each stamen has 2 parts. It is also called the main reproductive part of the flower. The main part of the androecium is filamen and anther. Filamen is the lower delicate stalk of the stamen. Anther is the upper swollen part of the stamen which consists numerous pollen grains. The main function of androecium is it is the main reproductive organ and produce pollen grain which act as a male gamete. It also helps in pollination. Number 4 main part of the flower is gynoecium. It is the 4th hole of the plant of flower and present in the center of the flower. It consists of 2 carpels. Each carpel consists of 3 visible parts: stigma, style, and ovary. Stigma is the upper swollen tips of the carpel. Style is the narrow stalk-like structure above the ovary, and ovary is the lowermost swollen part of the carpel. The main function of pistil or gynoecium are: it is a female reproductive organ, contain ovule which act as female gamete. The ovary contain many ovules which ripe into seeds after fertilization. The ovary ripen and it converted into fruit. Dear students, first part of topic number 8 has been completed. The homework of this topic is question number 14, 15, 16 and 17. Do homework in full scale paper. Learn all the work. Thank you.